Good morning, students. So, students, today we will be doing English and civics lesson together. So, let's begin. So, the objective for today is student will be able to describe events in the story. Okay. What is an event? Event is anything that happens in a story. All right. So, we'll read a story and there will be something happening. You will have to later describe, you'll have to explain, give details what happened. Okay. All right. Now, what I want you to do is, I want you to close your eyes. Come on, everyone. Close your eyes. Oh, I can see some of you have not closed. Please close your eyes. We're going to do an activity called Feel, Imagine, Do, Share. So, whatever I am telling you, think, imagine in your head. जो भी अब मैं पढ़ूंगी वो आप इमेजिन करो अपने दिमाग में कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा होता तो क्या होता. ठीक है, इमेजिन करना कि ये आपके साथ हो रहा है. सी विजुअलाइज इन योर माइंड. ओके, यू हैव टू सी इट इन योर माइंड कि दिस इज हैपनिंग टू यू. Imagine that when you go to school you are made to sit on the floor. All the students sit on the tables and chairs, but you sit on the floor. You are not allowed to sit on table or chair ever. No one touches you or your things. Other students do not share food with you, and if you were absent they do not give their notebooks to you. Teacher does not ever touch your notebook or correct it. You're not allowed to enter a temple ever. You are not paid money for your work. Sometimes you are not even allowed to study. You're not allowed to wear sandal or hold umbrella in front of other people. You cannot access the same toilet, pond, water, grocery store as other people. You cannot live in the same area as other people. You have to live outside the city, outside the village. You have your own things which are not that great. Imagine if all this happened to you, how would you feel? Okay, now I want all of you to open your eyes and think कि अगर ये सब आपके साथ हो रहा होता, आपके साथ ये सब होता तो how would you feel? Write in your notebooks, everyone, how would you feel? You can pause the video here and write in your notebooks how you would feel. At the end, when you do homework, share this also. Mute me, pause the video and write. Okay, everyone, I hope you have written it down. Now, you would think, teacher, but this cannot happen. This will never happen. But students, this happened. This happened to some people in our society. This used to happen before India got a constitution. India को constitution मिला उससे पहले ये होता था. And आज भी there are villages, there are cities जहाँ पे ये होता है. This is caste. आप सबको पता है caste क्या होता है? जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं नीची कास्ट के लोग, उनको शूद्रास भी बोलते हैं, उन्हें अनटचेबल बोला जाता है. और उनके साथ ये आज भी कई एरियाज में होता है. किसी के साथ भी अगर ऐसा होगा, they will not feel nice and it is not right. It's not just about feeling, it's about so many other things. It is about their life. I'm here to tell you
कि नो मैटर सोसाइटी ने आपको क्या बोला है, नो मैटर आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है, ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. Asking someone about their caste when you meet them is wrong. अगर आप किसी से मिल रहे हो और आप उनकी कास्ट के बारे में उनसे पूछ रहे हो तो वो गलत है. Treating people differently because they are from a lower or upper caste is wrong. लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करना क्योंकि वो लोअर या फिर अपर कास्ट से है, गलत है. Following untouchability in India is not only wrong but illegal. इंडिया में अगर आप ये सारी चीजें करते हो, अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हो, तो वो सिर्फ गलत ही नहीं है, वो इलीगल है. इलीगल मतलब क्या? लॉ के अगेंस्ट है, आपको जेल में डाला जा सकता है. एवरीवन, नो मैटर देयर कास्ट, इज इक्वल. हर इंसान, फर्क नहीं पड़ता क्या कास्ट है, इक्वल है. They have the same freedom and rights. हर इंसान के पास सेम अधिकार है, सेम फ्रीडम है, सेम आज़ादी है, सेम अपॉर्चुनिटीज है. ये मेरा मानना है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मानना है. ये हमारे इंडिया का रूल है. मेरे को पता है कि सोसाइटी और हमारी फैमिलीज ऐसा नहीं सोचती, पर students, you are getting education. It is your duty to tell everyone that what they're doing is not right, to behave in a different manner. ये आपके ऊपर है. जस्ट बिकॉज सोसाइटी और पेरेंट्स कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भी वो गलत काम करना है. आप सही कर सकते हो. एंड एजुकेशन आपको मिल रहा है, उसका यही फायदा है. You can use your education and you can do good in society. If you don't do it, if you follow untouchability, if you differentiate between people, you are not a good person. As simple as that. Okay, so this is what was about untouchability. Now we will see life of one person called Dr. Baba Saheb Ambedkar, and we will see his life story. Let's read. You can read along with me. Dr. Baba Saheb Ambedkar was born to a low caste family. His family picked up dead animals in the village. They used to get food from the village, not money. Their caste was called Dalit. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो एक लो कास्ट फैमिली में जन्मे थे. उनकी जो फैमिली थी, पूरे विलेज में से जो डेड एनिमल्स होते थे उनको उठाकर लेकर जाते थे, उनको साफ करते थे. उनको विलेज से खाना मिलता था, ये करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे और उनकी कास्ट को दलित बोला जाता था. ब्रिटिश पीपल वर रूलिंग इंडिया. They educated all caste people in India. भीमराव अंबेडकर got a chance to study. So जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, उन्होंने हर कास्ट के लोगों को पढ़ाया. एक चीज तो चलो ब्रिटिशर्स ने अच्छी की, भीमराव अंबेडकर got a chance to study. एंड तब जो भीमराव अंबेडकर थे उनको पढ़ने का एक मौका मिला. उससे पहले तो they were not even allowed. In school, he had to sit on the floor. Teachers would not touch his home notebooks. He was not allowed to drink water. He realized that he will always be untouchable. But Bhimrao loved to study. He got scholarship and went to America to study. He also went to London to study economics. स्कूल में उनको जमीन पे बैठना पड़ता था. टीचर्स उनकी नोटबुक्स को टच नहीं करते थे और वो स्कूल में पानी, कॉमन टैप से पानी पीना उनको अलाउड भी नहीं था. उनको रियलाइज हुआ, उनको एहसास हुआ कि वो हमेशा अनटचेबल रहेंगे. पर जो भीमराव थे उनको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था और इसी वजह से उनको स्कॉलरशिप मिली. स्कॉलरशिप क्या होता है? आपको पैसे मिलते हैं
पढ़ने के लिए, आपको खुद से पे नहीं करना पड़ता। एंड इसकी वजह से वो अमेरिका गए पढ़ने के लिए, वो लंदन भी गए इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। He came back to India. He was working as defense secretary and later as teacher. But people in India still treated him as untouchable. इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना ज्यादा सीखने के बाद जब वो इंडिया आए तो वो डिफेंस सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे, और फिर उन्होंने बाद में टीचर भी बने। पर जो लोग थे वो अभी भी उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट करते थे। स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए आप उन लोगों को टच नहीं करते थे जो डेड एनिमल्स या ह्यूमंस को मूव करते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि उनके पास जर्म्स होते हैं, बट जैसे ही वो नहा लेते हैं, जैसे ही वो बेथ कर लेते हैं, वो जर्म्स चले जाते हैं, फिर आप आराम से उनको टच कर सकते हो। इसमें कास्ट कहाँ से आ गया? यस, पर कोई इंसान जो इतना अच्छे से पढ़ सका है, सब कुछ उसने किया है, वो नॉर्मल काम कर रहा है, उसको जस्ट बिकॉज उसका कास्ट कुछ और है, उसको अनटचेबल की तरह ट्रीट करना। एंड कास्ट है क्या? क्या भगवान ने बनाया है? नहीं, ह्यूमंस ने बनाया है, जिससे कि वो दूसरे लोगों से अपना काम निकाल पाए, उन लोगों को फोर्स कर पाए वो काम करने के लिए जो उनको खुद को नहीं करना है। क्योंकि जो भी अनटचेबल्स होते हैं उनको गंदा काम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको खुद को वो काम नहीं करना है, तो इन लोगों के साथ इतना गंदा ट्रीट किया जाता है। Alright, let's move forward. Ambedkar kept on learning and growing. Soon India became free from British. He became the law minister of India. He got a chance to make India's constitution. Now this is very very good. जो अम्बेडकर थे वो लर्न करते रहे और वो ग्रो करते रहे। जल्दी इंडिया फ्री हो गया ब्रिटिशर्स से, एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंडिया के लॉ मिनिस्टर बने। यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिया में कौन कौन से लॉज होंगे, कौन कौन से कानून होंगे, वो बनाएंगे। उनको एक चांस मिला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में सारे इंडिया के लॉज लिखे होते हैं, राइट्स जो लोगों को मिलेंगे वो लिखे होते हैं, लोगों को क्या अलाउड है करना वो लिखा होता है। तो उनको चांस मिला ये बनाने का। He wanted the constitution to remove untouchability. वो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए जिसमें अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया। अनटचेबिलिटी अगर कोई फॉलो करेगा तो उसको इलीगल माना जाएगा और उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगा। जो लोगों में डिस्क्रिमिनेट करेगा उसको। He wanted equal rights for women. So like untouchables, women को भी सेम राइट्स नहीं थे, सेम फ्रीडम नहीं थी एज मैन। सो उन्होंने इक्वल राइट्स दिए women को भी इंडिया में। He wanted to give equal opportunity to every इंडिया में जितने भी लोग थे वो उन सबको इक्वल मानते थे और उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी लॉ में। सो अगर आज कोई भी किसी के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो वो लॉ के हिसाब से गलत है, कानून के हिसाब से गलत है, और उस इंसान को जेल भेजा जा सकता है, पेनल्टी लग सकती है। So this was Dr. Baba Saheb Ambedkar. You saw he came from a very very low caste family, but it did not matter. He went on to study and become such a big person. He designed our constitution that we are following. Our constitution makes India, and he made it. And he made it such a beautiful constitution जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल राइट्स है। आई एम वेरी हैप्पी that Dr. Baba Saheb Ambedkar made our constitution. All right, let's move forward. Okay, so question time. There are 3 questions. Question number 1 is, in our society we have concept of caste and untouchability. हमारी सोसाइटी में कास्ट और अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या आपको लगता है ये फेयर है? Why not? अगर आपको लगता है ये फेयर है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना, अगर आपको लगता है फेयर नहीं है तो भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इन सीक्वेंस द लाइफ ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो आपको सीक्वेंस से बताना है, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे अभी हमने पूरा स्टोरी पढ़ा है,
वो पहले बॉर्न हुए थे, फिर उसके बाद में वो स्कूल गए पढ़ने, फिर उसके बाद ही वेंट टू America on scholarship, then he went to London to study, फिर he became defense secretary and then teacher. After that he became law minister. After that he designed our constitution, he made our constitution. एंड इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड डॉक्टर बाबा साहेब्स एक्सपीरियंस इन लाइफ अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओके, सो जो बाबा साहेब का लाइफ का एक्सपीरियंस था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अफेक्ट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी गई जो बाबा साहेब ने लिखी, जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से उन्होंने लिखी, मतलब उनके साथ जो भी हुआ उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या क्या लॉज लिखे. इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो उनकी लाइफ में जो भी उनके साथ गलत चीजें हुई उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लॉज लिखे. ठीक है, so these are the 3 questions everyone. Finish this and send it to me by Sunday evening. You have 3 days to do it.